आज गन पार्क में SC/ST/BC माइनॉरिटी फ्रंट के ओर से रेप और मर्डर के खिलाफ धरना किया गया है। रबिया को जिन्होंने रेप और मर्डर किया है उन्हें तुरंत सजा देने की मांग की है और कमेटी मेंबर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि देश में महिला को सेंट्रल होम मिनिस्टर बनने की ज़रूरत है। महिला होम मिनिस्टर बनने से महिलाओं के साथ इंसाफ होने की बात उन्होंने कहा है। इस मौके पे सनाउल्लाह खान, रफिया नौशीन, सैयद मुस्तफ़ा, साजिदा बेगम, सारे कमेटी मेंबर्स भी मौजूद थे। ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు శిశువులకు రక్షణ లేకుండా పోతుంది। అది మా బాధ ఏమైతుందంటే ఇంతవరకు మాకు రక్షణ శాఖ ఉన్నది, మహిళలకు రక్షణ ఉంటుంది, శిక్షిస్తారు, మరి హంతకులను శిక్షిస్తారని మేము వాళ్ళపైన ఆధారపడి మేము సొసైటీలో సర్వీసెస్ కానీ ఎవరు కానీ ఆడపడుచు జీవించి చదవడం కానీ ఉద్యోగం చేయడం అన్నీ జరుగుతుండే। కానీ ఆ రక్షణ శాఖకే ముప్పు వచ్చింది। ఆ రక్షణ శాఖలనే గండి కొట్టి మరి అట్లాంటి మహిళలకు కూడా అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళకు కూడా హతమారుస్తున్నారని అంటే ఇది కేవలము రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లనే జరుగుతుంది। కాబట్టి మాకు మొత్తం టోటల్ సిస్టమ్ పైన విశ్వాసం లేదు, మాకు విశ్వాసం లేదు। మీరు మా అక్క ఉండే సుష్మా స్వరాజ్ గారు, మా సుష్మా స్వరాజ్ ఉంటే మహిళల కోసం పోరాటం చేస్తుండే, ఇప్పుడు శృతి ఇరానీ ఉన్నది, మరి ఇట్లాంటి వాళ్ళు మహిళల కోసం ఏం చేస్తున్నారు? మహిళా 33% రిజర్వేషన్ కోసం ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తలేరు? మరి గట్టి చట్టాలు ఎందుకు చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తలేరు అని మేము బాధపడుతున్నాం। ఎవరికి చెప్పుకోవాలి, ఏం చేసుకోవడానికి? ఇప్పుడు గంటకు ఒక రేప్ అవుతుంది, ఈ చుట్టుపక్కల అయిపోతుంది, ఇప్పుడు ఇంటి దాకా వచ్చింది అంటే ఇంత వైరల్ అవుతుంది అంటే నిద్రపోతారా? రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిద్రపోతున్నారంటే మేమేం దానికి ఏం మాట్లాడుకోవాలి, ఏం చెప్పుకోవాలి? సమాజం, సభ్య సమాజం, ప్రజల సమాజమే మా దేవాలయము, ప్రజలే మా దేవుళ్ళు, సభ్య సమాజము తలదించుకుంటుంది। ఒక తండ్రిగా ఒక తల్లిగా ఎంత అవమానపడుతున్నామంటే సమాజం ముందర నిలబడలేకపోతున్నాం। మాకు ఈరోజు నోరు లేదు, ఊరు లేదు, మాకు ఏమి 50% సగ భాగం మహిళలు ఉన్నారు ఈ సమాజంలో, అయినా కూడా మహిళలకు రక్షణ లేకపోతుంది, మహిళలకు పట్టించుకోవడం లేకపోతుంది రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలంటే। మరి దీంట్లో దోషం ఎవరిది అంటే చట్టాల్లో అగ్రవర్గాలు ఉండడం వల్ల అనగారి బిడ్డలకు ఇలా జరుగుతుందని అనుకోవాలా, లే చట్టాల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇట్లా జరుగుతుందని అనుకోవాలా, లే రక్షణ శాఖ గుడ్డి అయిపోయిందని ఇలా జరుగుతుంది అని అనుకోవాలా? ఏమనుకొని మేము మా మనుషులకు సమాధానం చెప్పుకోవాలి? మాకు ఎక్కడ న్యాయం దొరుకుతుంది? మాకు చట్టాలు ఉన్నాయి, మాకు ధర్మం ఉంది, న్యాయం ఉంది, సత్యం ఉంది, సమాజం ఉంది, మరి ప్రభుత్వం ఉంది అని మేమైతే ప్రభుత్వం చచ్చిపోయింది అనుకుంటున్నాం। మాకు అవసరం లేదు, ఇట్లాంటి మహిళలకు స్వేచ్ఛ లేదు, మహిళలకు స్వాతంత్రం లేదు, మహిళలకు ప్రతిష్టలు పరువు ప్రతిష్టలు లేదు, సగ భాగం ఉన్న మహిళలకు సమాజంలో। మరి అట్లా ఉన్నప్పుడు మరి ఎందుకు మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పెట్టిన ఓట్లు ఎందుకు గుర్తించుకుంటారు ఈ కొడుకులు? మరి వీళ్ళకు సిగ్గు లేదా, బుద్ధి లేదా? మేము బిచ్చగాళ్ళమా మహిళలంటే? ఇది ఏం చెప్పుకోవాలి మేము, ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? మా అంబేద్కర్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టకుంటే పదవికి రాజీనామా చేసిండ్రు। అరే తిక్కా కొడుకున్నానా, మీ బతుకుల్లో మన్ను పోయా? మీరు రాజీనామాలు చేస్తారా? మీరు చస్తారా? మీరు బతుకుతారా? మీ రాజకీయాలు వద్దు, మీ ప్రభుత్వాలు వద్దు, మాకు మీ పైన విశ్వాసం లేదు, నమ్మకం లేదు, మీరు వద్దురా నాయన, మాకు బతకనియండిరా। మేము కూలి చేసుకొని బతుకుతాము, మేము ఉపాధి చేసుకొని బతుకుతాము, మేము ఉద్యోగం చేసుకొని బతుకుతాము, మరి మేము విద్య చేసుకొని బతుకుతాము, కానీ మాకు బతుకోలొద్దా? మేము బతుకోద్దా మహిళలకు? तो हम ये चाह रहे हैं कि मोइनाबाद की जो केस हुई उसकी बराबर रिपोर्ट आए, और हाल ही में जो मरियम्मा के केस में डीजीपी को रिपोर्ट बताओ बोल के केसीआर खुद बोले थे, उनको हर पेपर में फ्लैश होता, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो ये बार बार जो इनजस्टिस हो रहा है इसके ऊपर क्या है कि प्रिवेंटिव बाद में हम सीसी कैमरास लगाए और फिर वो लगाए, ये सब नहीं। आप ये नहीं हुए जैसा आपकी एक्शन प्लान आज तक आप आवाम को, महिला
महिलाओं को, लेडीज़ को नहीं दिए कि एक्शन प्लान क्या है कि फिर कभी ये हरकत नहीं करेगा कोई बोल के, ये आज तक इनकी सोच भी नहीं है। जब एक पड़ी हुई एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, जो दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के सेंट्रल मिनिस्टर के नाक के नीचे जो इतना बड़ा हो रहा है और उसके ऊपर सीरियसनेस नहीं है, वुमेन मिनिस्ट्रीज कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब कोई भी चीज़ आता है तो हर मिनिस्टर बोलते जाता है, लेकिन जब वुमेन के ऊपर कुछ होता है तो कोई वुमेन मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही, कोई सेंट्रल वुमेन कमीशन कहाँ पर है, यहाँ की स्टेट वुमेन कमीशन और बच्ची के ऊपर क्या करी, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी क्या कर रही है। सो इतने सारे कमिटीज़ होने के बावजूद भी ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक भी चीज़ होने के बाद एक्शन प्लान इसके बाद कि हम कभी नहीं होगा उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे वो आज तक ये लोग नहीं बोले, बल्कि बच्चियों के ऊपर, औरतों के ऊपर और भी ये लोग डालते जाते कि आप पेपर स्प्रे रखिए, आप वो स्प्रे किए, हम CCTV कैमरा लगाए। तो ये क्या है मालूम, ये सोशल मेंटल जो चेंजेस लाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं लाए हैं, चुप ऊपर से सुपरफिशियल ये लोग कर रहे हैं। तो ये होना ही वाला है। और एक आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, 3 IPS ऑफिसर्स जो तमिलनाडु के हैं वो लोग बहुत अहम बात बोले जो कि कोई नहीं भूलना चाहिए। वो लोग क्या बोले कि पूरी इंडिया से हम ये निवेदन करते हैं, हम अपील करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल पिक्चर्स बनाइए। ये क्या छोटी बात है जो 3 सिटिंग IPS फीमेल ऑफिसर्स बैठ के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं। तो वेयर इज द मिनिस्ट्री, वेयर इज द सेंट्रल मिनिस्ट्री, वेयर इज द स्टेट मिनिस्ट्री? क्या उन्होंने इस बात की कॉग्निसेंस लिए और कुछ तो बदलाव लाए फिल्म्स में और टीवीज़ में और जो भी फोन की हो रही है सब चीज़ों में? और एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात मैं बता रही हूँ, ये जो छोटी बच्ची का हुआ है या किसी भी औरत के साथ जो हो रहा है, ये सब अल्कोहल के तहत में हो रहा है। ये जो बच्ची के साथ हुआ, उन्हें वो हरकत करने के बाद 2 बार अल्कोहल लिया, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी आई है पेपर में, पूरी CCTV कैमरा के साथ 2 बार उन्होंने वो हरकत करने के बाद भी अल्कोहल लिया, पूरी अल्कोहल के तहत, इन्फ्लुएंस के तहत हो रहा। और अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि अल्कोहल की आउटलेट्स, लिकर आउटलेट्स में भी आप कोटा करके बांट रहे हो। तो ये एजुकेशन कहाँ जा रहा है और ये वुमेन की पढ़ाने की, सिक्योरिटी की बात कहाँ जा रही है, उसको एम्पावरमेंट की बात कहाँ जा रही है? आप लिकर को आराम से बेचते जा रहे हो, विच इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द वुमेन्स लाइफ, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड रहो। शर्मिंदगी की बात है कि आज हम फिर एक मर्तबा हमारी बेटियां, बहुएं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनकी जो है अस्मत के सिलसिले में, हिफाजत के सिलसिले में जो हिफाजत नहीं हो रही है, उस सिलसिले में आपके थ्रू समाज से हम बात कर रहे हैं। बड़ा अफसोस का मुकाम है, वो देश जहां सीता का देश है, उस देश में ऐसी हरकत हो रही है। वो देश जहां पर जो है हाफ पॉपुलेशन जो है लेडीज़ पर मबनी है और फिर ऐसी घिनौनी हरकत हो रही है रेप केसेस की कि इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। बचपन से लेकर 55 तक ये जो है काम किया जा रहा है, बेशर्मी के अंदाज में जो है किया जा रहा है। इसको रोकने के सिलसिले में सबसे पहला काम ये होना है कि तेज़ी से इंसाफ मिलना चाहिए। सत्वरा न्यायम इसको जो है हम तेलुगु में कहेंगे। ये इंसाफ नहीं हो रहा है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर इसमें देर हो जाएंगी तो इनकार करने के मुतरादिफ है, ये काम होना है। जनरल सेक्रेटरी MBT सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी MBT। आज जो सबिया सैफ़ी के लिए हम लोग यहाँ जहाँ धरने के लिए जमा हुए हैं गन पार्क पर, हम स्ट्रांगली जो है कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं कि जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में, किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में अगर किसी मासूम लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ अगर ज़्यादती होती है, रेप और मर्डर का जैसे वाक़यात होते हैं, हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त क़ानून बनाया जाए और इसको डिले ना किए करें, इसको फ़ौरन जल्द से जल्द इसको सज़ा दें और शूट आउट का ऑर्डर दें, उसको शूट कर दिया जाए, या तो हैंग करें या तो शूट करें इसको। इस तरीके से जो है ना ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पर, इस बात से कि ख़वातीन के साथ हमारा मुल्क बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। तो इसीलिए हम मुतालबा करते हैं न सिर्फ तेलंगाना बल्कि यानी हुकूमत हिंद से। सारा मीडिया सो गया था या किसी तासुबाना नज़रियात की वजह से खामोश बैठ गया था। सबिया सैफ़ी से हटकर जब जब हिंदुस्तान में रेप हुए, कत्ल हुए, उसके ख़िलाफ़ में तमाम हिंदुस्तान के डिफेंस ऑफिसर राबिया सैफ़ी नामी एक लड़की का चंद दहशतगर्दों ने रेप ही नहीं किया,
बल्कि उसको दरिंदाना अंदाज में कत्ल किया। कल मोदी जी आलमी सतह पर बात कर रहे थे कि हमको दहशतगर्दी के ऊपर लगाम लगाने के लिए काम करना चाहिए, तो मोदी जी को ये भी बोलना चाहिए कि वो जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं वो दहशतगर्दी में क्या हिंदुस्तान भी शामिल है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबिया सैफी के कत्ल से लेकर मॉब लिंचिंग ऐसे कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुए हैं। तो हम मोदी से उम्मीद करते हैं कि वो जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं आलमी सतह के ऊपर बात करने के बजाय पहले वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए प्रोग्राम करें। रहा सवाल सबिया सैफी का जब कत्ल हुआ है, उनका रेप हुआ है, उस वक्त हिंदुस्तान का सारा मीडिया गुमनाम हो गया। रियासती हुकूमतों से, मरकज़ी हुकूमतों से ये अपील कर रहे हैं कि वो बग़ैर तासुब के नज़रियात रखे कि इस तरह के दरिंदगी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दें। हैंकॉन्ग का भी इस वक्त दौर नहीं रहा। इनकाउंटर एक वाहिद रास्ता है। जो भी रेप करता और मर्डर करता उसका इमीडिएट इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि पिछले इनकाउंटर्स में पब्लिक हुकूमत की और पुलिस की तायद करी है। उस तायद को मद्देनज़र रखकर ये जितने भी रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, इन सबको इनकाउंटर करना चाहिए। My name is Dai Halima from Fort Singh. Girl child rape, stop. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माई NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। ये आए दिन रेप और मर्डर आप लोग सुन रहे हैं, फिर उसके बाद वो लोग गायब हो जा रहे हैं, तो फिर वो लोग का खुदकुशी कर लिए बोल रहे। कानून को चाहिए कि ये चीज़ के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून निकाला जाए, और हुकूमत KCR साहब से हम रिक्वेस्ट करें जहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा उन लोग को वही स्पॉट पे या तो इनकाउंटर कर दो या फिर फांसी तो है नहीं। और अगर ये कानून नहीं कर रहा तो हम पब्लिक से बोल रहे ऐसे दरिंदों को आप लोग ही ऑन दी स्पॉट सज़ा दे दो। पत्थर आधा उन लोग को ज़मीन में दफना के पत्थरों से मार दो ऐसे लोगों को। एक को अगर आप लोग ऐसी कोई मौत देंगे तो उन लोग के दिल में कुछ डर बैठेगा। आए दिन 5 साल 3 साल 2 साल इंसानियत ख़त्म हो जा रही, और ये लोगों को आप लोग जेल बोल के भेज रहे, फिर वो लोग बेल पे बाहर आ जा रहे। इसलिए कानून को चाहिए कि ऐसे लोगों को ऑन दी स्पॉट दे दीजिए और इन लोग को ऑन दी स्पॉट इनकाउंटर कर देना बस। के तमाम बहुजनों को सलाम आदाब। आज जन पार्क में जो देश भर में छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है, ये ना भारत के प्रधानी को मालूम है, ना ही रियासती वज़ीर KCR साहब को मालूम है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब के निशा में सो रहे हैं, और हमारे KCR साहब ये पूरे आवाम को मालूम है हमेशा 24 घंटे निशा में रहते हैं। निशा में रहने वाले हुकूमत को संभाल नहीं सकते। रक्षा, देश की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के माने हैं वहाँ की आवाम की रक्षा। ये रक्षा के लिए रक्षा भट्ट जो हैं ये रेपिस्टों से मिले हुए हैं और दवा बेचने वालों से, शराब बेचने वालों से, कॉन्ट्रैक्टरों से मिलके ऐसे जो क्राइम उनके नज़रों में आए तो भी उसको नहीं देखा जा रहा है। और बड़े चीफ सेक्रेटरीज हो या IPS ऑफिसर्स हो, ये बिल्कुल अपनी लाठी लगाए अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खुदा हाफिज़।